Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's we have conclude the lecture standard 10th subject science. Okay, student. Chapter number 16. Today's date 21st September 2020. Chapter number 16, Management of Natural Resources. In previous lecture we have studied the sustainable management, then डैम्स कुलास. ओके, हम डैम्स के बारे में पढ़े, उनके प्रॉब्लम्स जो है वो हमने देखे. देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स: सोशल प्रॉब्लम्स, देन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. 16.3.2 वाटर हार्वेस्टिंग. Watershed management emphasizes scientific soil and water conservation. In order to increase the biomass productions, the aim is to develop primary resources of land and water to produce secondary resources of plants and animals for use in a manner which will not cause ecological imbalance. Watershed management not only increases the productions and income of the watershed community, but also migrates droughts and floods and increase the life of the downstream dam and receivers. डाउनस्ट्रीम जो रिसीवियर्स थे उसमें से डैम में से सब पानी लेते थे. Various organizations have been working on rejuvenating ancient systems of water harvesting as an alternative to the mega project like dams. These communities have used hundreds of indigenous water saving methods to capture every trickle of water that had fallen on their land, dug small pits and lakes. Put in place simple watershed systems, built small earthen dams, constructed dikes, sand and limestone receivers, set up rooftop water collecting units. This has recharged groundwater levels and even brought rivers back to life. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन एज ओल्ड कंसेप्ट ऑफ इंडिया. इंडिया में जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो पहले से ही बरसों से ही चला आया है. खादीज टैंक्स एंड नाडीज इन राजस्थान, ब्रांचेस एंड टेल्स इन महाराष्ट्र, बूंदीस इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ahas and pines in Bihar, pulas in Himachal Pradesh, ponds in the Kandi belt of Jammu region and areas in Tamil Nadu, surgams in Kerala and katas in Karnataka are some of the ancient water harvesting, including water convenience structures still in use today. हमारे तक जो कन्वीनियंस है वो स्ट्रक्चर्स है, वाटर कन्वेंशंस केरला में है, कटास में है, वो सब हमने देखे हैं. इसी फिगर 16.3 फॉर एन एग्जाम्पल. वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर हाईली लोकल स्पेसिफिक एंड द बेनिफिट्स आर ऑल्सो लोकलाइज, गिविंग पीपल कंट्रोल ओवर देयर लोकल वाटर resources ensures that mismanagement and over exploitations
ऑफ दिस रिसोर्सेज इज रिड्यूसिंग, मीन्स के वो धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं। कैचमेंट एरिया इट रीजन, देन खादीदान और क्रॉप्ड एरिया है, देन खादीन बंड है, यहाँ पे सीपेज, और यहाँ पे शैलो डगवेल है। तो ये जो हुआ वो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स है, एन आइडियल सेटिंग ऑफ द खादीदान सिस्टम्स। इन लार्जली लेवल terrain, the water harvesting structures are mainly crescent shaped earthen embankments or low strata concentrate and double check dams built across seasonally flooded gales. Monsoon rains fill ponds behind the structures. मानसून में क्या होता है, बहुत सारा जो पानी है, रेन वाटर का पानी, वो पॉन्ड्स में जमा हो जाता है। Only the largest structures hold water year round. Most dry up 6 months or less after the monsoons. Their main purpose, however, is not to hold surface water but to recharge the groundwater beneath. धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में पानी धीरे धीरे भरा जाता है। The advantages of water stored in the ground are many. It does not evaporate but spreads out to recharge wells and provides moisture for vegetation over a wide area. वाइड एरिया में जो मॉइस्चर्स का प्रॉब्लम होता है वो हो जाता है, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग में ऐसा ही है। सॉइल के अंदर जब पानी धीरे धीरे जमा होता है तो मॉइस्चर का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। In addition, it does not provide breeding grounds of mosquitoes like a stagnant water collected in ponds और artificial lakes। तो जहाँ पानी जमा होगा वहाँ मॉस्किटोस भी ज़्यादा होंगे। ओके, the groundwater is also relatively protected from contaminations by human and animal waste। ओके, अभी ये देखो इनबिल्ट क्वेश्चंस है जो आपको लिखने हैं। फर्स्ट है, फाइंड आउट अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इन योर रीजन। आपके रीजन में हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसी है उसके बारे में आपको लिखना है। देन सेकंड है, कंपेयर द एबो सिस्टम्स विद द प्रॉब्लम सिस्टम्स इन हिली, माउंटेनियस एरियाज और प्लेन्स और पैलेटिव रीजन्स। देन थर्ड है, फाइंड आउट द सोर्स ऑफ वाटर इन योर रीजन लोकेलिटी। Is water from this source available to all people living in that area? आपके एरिया में पानी का जो है वो रिसोर्सेज है वो कम्प्लीटली मीन्स के फ्लो ऑफ वाटर अच्छे से आता है, सब एरिया में पानी फुलफिल हो जाता है, वो देखना है। ओके, तो 68.4 है कोल एंड पेट्रोलियम। We have seen some of the issues involved in the conservation and sustainable use of resources like forest, wildlife and water. This can meet our needs perpetually if we were to use them in a sustainable manner. हम उसका यूज़ सस्टेनेबल मैनर से करें तो वो अच्छा है, हमारे लिए प्रिजर्वेटिव है। नाउ वी come to yet another important resources, fossil fuels, that is coal and petroleum। अभी हम अनदर जो रिसोर्सेज है वो कोल एंड पेट्रोलियम है उसके बारे में देखेंगे। विच आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर अस, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो एनर्जी सोर्सेज हैं। सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस वी हैव बीन यूजिंग इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ एनर्जी टू मीट आवर बेसिक नीड्स एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ large number of goods upon which our lives depend.
These energy needs have been largely met by the receivers of coal and petroleum. ओके, ये जो एनर्जी है वो गुड्स अपॉन विच आवर लिव्स डिपेंड, जो हमारे वहाँ कैसे जो कचरा है वो इकट्ठा होता है ना. दिस एनर्जी नीड्स हैव बीन लार्जली मेड बाय द रिसीवर्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. उससे ही तो कोल और पेट्रोलियम बनता है. द मैनेजमेंट ऑफ दिस एनर्जी सोर्सेज इन्वॉल्व स्लाइटली डिफरेंट perspectives from those resources डिस्कस अर्लियर. हम अर्लियर ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया है. कोल एंड पेट्रोलियम वेर फॉर्म ऑन द डिग्रेडेशंस ऑफ बायोमास millions of years ago, and hence these are resources that will be executed in the future to matter how carefully we use them. कोल एंड पेट्रोलियम ऐसी चीज़ है जिसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. वो एक टाइप का डिग्रेडेशन है ऑफ बायोमास. जो कूड़ा कचरा होता है धीरे 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 वो सड़ता है ना. बहुत सारे साल हो जाते हैं इसमें. Hence these are resources that will be executed in the future no matter how carefully we use them. हमें उसका केयरफुली उसका यूज़ करना चाहिए. And then we would need to look for alternative sources of energy. हमें उसके अल्टरनेटिव सोर्सेज भी फाइंड आउट कर देने चाहिए, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम धीरे धीरे उसकी क्या हो रही है, स्कैरिसिटी हो रही है, मीन्स के उसकी कमी हो रही है. तो हमें उसके अल्टरनेटिव जो सोर्स है वो फाइंड आउट कर लेने चाहिए. And then we would need to look for alternative sources of energy. Various estimates as to how long these resources will last us exist, and one is that at present rates of uses, our known petroleum resources will last us for about 40 years, and the coal resources will last फॉर अनदर 200 ईयर्स, है ना. पेट्रोलियम जो है वो लास्ट हम 40 ईयर्स देख रहे हैं, और जो अनदर कोल है वो तो 200 ईयर्स से हम यूज़ करते हुए आए हैं. बट लुकिंग टू द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज़ नॉट द ओनली कंसिडरेशंस व्हेन वी लुक एट द कंजप्शंस ऑफ coal and petroleum. Since coal and petroleum have been formed from biomass, in addition to carbon, these contain hydrogen, nitrogen and sulfur. ये जो सारे जो केमिकल है वो उसमें हो जाते हैं. When these are burnt, the products are carbon dioxide, water, oxides of nitrogen and oxides of sulfur. When combustions take place in sufficient air, then the oxides of sulfur and nitrogen and carbon monoxide are poisonous at high concentrations, and carbon dioxide is a greenhouse gas. कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 है वो तो ग्रीन हाउस गैस में है. Another way of looking at coal and petroleum is that they are huge receivers of carbon, है ना. हमारे एयर में तो बहुत सारा कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन 0.03% है, पर जो व्हीकल्स के स्मोक्स होते हैं उसमें कार्बन जो है वो ज़्यादा रहता है. देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर इज़ गोइंग टू इंक्रीज, लीडिंग टू इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग. तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो जब बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी इफ़ेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग पे उसकी इफ़ेक्ट बढ़ती जाएगी. ओके.
Thus we need to use these resources judiciously. तो हमें उसका इस्तेमाल धीरे धीरे करना चाहिए. अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 16.10. Coal is used in thermal power stations and petroleum products like petrol and diesels are used in means of transport like motor vehicles, ships and aeroplanes. Okay, कोल का इस्तेमाल हम करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, डीजल कहाँ पे यूज़ होता है. We cannot really imagine life without a number of electric appliances and constant use of transportations. हमारी लाइफ में बहुत सारे जो व्हीकल्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, सब जगह हम कोल, पेट्रोलियम, डीजल यूज़ करते रहते हैं. So can we think of ways in which our consumptions of coal and petroleum products be reached? तो हमें देखना चाहिए कि भी हम कहाँ पहुँचेंगे. कोल और पेट्रोलियम का हमें कितना सारा यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी कमी तो होने ही लगेगी ना, तो हमें उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए. ओके, सम सिंपल चॉइसेस कैन मेक अ डिफरेंस इन आवर एनर्जी कंजप्शंस पैटर्न्स. यहाँ पे थोड़ी चॉइसेस लिखी है कि आप ऐसा करो तो आप हम उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कर दे तो हम उसको सेव कर सकते हैं. थिंक ओवर द रिलेटिव एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट है टेकिंग अ बस, यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल और वॉकिंग या तो साइकिल. टेकिंग अ बस, हमें बस का इस्तेमाल करना चाहिए. हम अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे तो एक उसमें कितना सारा पेट्रोल जाएगा, कितना पोल्यूशन हो जाएगा, है ना. बस में तो एक साथ 30 या तो 40 जो पैसेंजर्स हैं वो जा सकते हैं. तो यूजिंग अ बस, जो जगह हमें चल के जाना चाहिए वहाँ चल के जा सकते हैं. साइकिलिंग कर सकते हैं, है ना. साइकिलिंग में भी कोई पेट्रोल का यूज़ नहीं होगा. तो ये सारी बातें जो है वो हमें याद रखनी है. सेकेंड है यूजिंग बल्ब्स, बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए. यूजिंग बल्ब्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स इन योर होम्स, हमारे घर में बल्ब्स या तो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हमें लगा देने जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शंस कम होता है. थर्ड है यूजिंग द लिफ्ट और टेकिंग द स्ट्रेस. लिफ्ट यूज़ करो, उससे अच्छा है आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ तो इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, यूज़ होगी. फोर्थ है वियरिंग एन एक्स्ट्रा स्वेटर और यूजिंग अ हीटिंग डिवाइस, हीटर और सिगरी ऑन कोल्ड डेज. कोल्ड डेज में हमें क्या करना चाहिए, ठंडी में हमें स्वेटर यूज़ करना चाहिए, है ना. ये तो हीटिंग डिवाइस ऐसे यूज़ करने चाहिए, सगड़ी यूज़ करनी चाहिए. हीटर की जगह पे हम सगड़ी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो ये जो 4 जो पॉइंट्स है वो याद रखने के लिए हैं. फर्स्ट मैं रिपीट करती हूँ. टेकिंग अ बस, यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल, बस का यूज़ करो, अपने पर्सनल व्हीकल चलाओ, उससे अच्छा है. यूजिंग बल्ब्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स इन योर होम्स, यूजिंग द लिफ्ट और टेकिंग द स्टेयर्स, वेयरिंग एन एक्स्ट्रा स्वेटर्स और यूजिंग अ हीटिंग डिवाइस. एक्स्ट्रा स्वेटर पहनो, ठंडी ज़्यादा लगती है तो, है ना, ऐसा बोला है. और यूजिंग द हीटिंग डिवाइस में हीटर यूज़ करो, उससे अच्छा है सगड़ी यूज़ करो कोल्ड डेज में, जब सर्दियों के सीज़न की बात की है. द मैनेजमेंट ऑफ coal and petroleum also addresses the efficiency of our machines. Fuel is most commonly used to internal combustion engines for transportations, and recent research in this field concentrates on ensuring complete combustions in these engines in order to increase efficiency and also reduce air pollution. हम एयर पोल्यूशन धीरे धीरे इससे कम कर सकते हैं. देन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी, एक्टिविटी 16.11. यू मस्ट हैव हर्ड of the Euro I and Euro 1 and Euro 2 norms for emissions from vehicles. Find out how these norms work towards reducing air pollution.
आपको ये गूगल में सर्च करना पड़ेगा यूरो 1 एंड यूरो 2 क्या है। ओके, आप सर्च करके देखना। ये व्हीकल्स के एक नॉर्म्स है। ये व्हीकल्स को बार बार हमें सर्विस करानी पड़ती है, उसके इंजन्स की सर्विस करानी पड़ती है, पीयूसी करवाना पड़ता है। तो आप एक बार, व्हीकल्स तो सब यूज़ करते हैं, है ना, एक्टिवा यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं। कहीं जगह नज़दीक की जगह हो तो भी फटाफट वो किक मार के एक्टिवा लेके आप चले ही जाते हो। ओके, बट एक बार आपको ये यूरो 1 और यूरो 2 पढ़ने ही चाहिए, वो नॉर्म्स आप सर्च करना तो आपको सारे नॉर्म्स आ जाएंगे कि हमें हाउ टू यूज़ व्हीकल्स, हमें व्हीकल्स कैसे यूज़ करने चाहिए। ओके, कब व्हीकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तो ये नॉर्म्स आप देखोगे तो उसमें लिखा है साफ कि हमें कैसे हम वर्क करते हैं, कैसे रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन कैसे रिड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। 16.5 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। कंप्लीट योर CW। आप अपने CW कंप्लीट करें, जितने चैप्टर हमारे हो गए वो आपके CW में कंप्लीट होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।